हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान मैथ्स। आज हम एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट लेवल के सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि हमने थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन, उस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और अब हम थोड़े डिफिकल्ट लेवल में जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट 16 इंटू 2n+1 माइनस 4 इंटू 2n divided by 16 into 2n+2 minus 2 into 2n+2 equals to 1/2. We have to prove that is LHS equal to RHS हमको प्रूफ करना है। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS solution or proof is, take LHS is equals to 16 into 2n+1 minus 4 into 2n divided by 16 into 2n+2 minus 2 into 2n+2. So this is the given question. Okay. So now we can write here 16 as 2^4. 2^4 की वैल्यू होती है 2 into 2 into 4 times, so 2^4 equals to 16. So we can write 16 as 2^4. So this is equals to 2^4. Okay, 2^4 into 2n+1 minus 4 we can write it as 2 square. So this is 2 square into 2n whole divided by 16. Again we can write it as 2^4 into 2n+2 minus 2 into 2n+2. Right? Next, here bases are same. So we can add the powers. So 2^4 plus n plus 1 minus 2^2 plus n divided by 2^4 plus n plus 2 minus 2^1 plus n plus 2. So like this we can add the powers. Next, 2^n plus 5 minus 2^n plus 2 divided by 2^n plus 6 minus 2^n plus 3. अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पे सब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे 2^n+2 लिखा है और यहाँ पर 2^n+5 लिखा है। So in this case 2^n+2 is less than 2^n+5. So we have to take common as 2^n+2, and in denominator we have to take common as 2^n+3. Okay, so न्यूमरेटर में 2^n+2 जब हम कॉमन लेते हैं, इसमें जब हम 2^n+2 कॉमन लेते हैं तो इसमें बचेगा 2^5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2^n+5 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2^n+2 plus 3. तो 2^n+2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा? 2^3. राइट? सो 2 क्यूब लेफ्ट माइनस 2^n+2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, इन डिनोमिनेटर वी हैव टू टेक कॉमन एज 2^n+3. सो 2^n+3 कॉमन ले लिया, तो इसको 2^n+6 को कैसे लिख सकते हैं? 2^n+3 plus 3. राइट? सो n+3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 3. सो 2 क्यूब माइनस 1. अंडरस्टैंड? नाउ in numerator 2 cube minus 1, in denominator 2 cube minus 1, so we get cancelled this both, and now bases are same but power is different, तो हम power को subtract कर देंगे as we know about from the laws. 2^n+2 जब ये denominator से ऊपर जाएगा power तो minus of n+3. right? So this equals to 2^n+2 minus n minus 3. So now minus get cancel, ये हो जाएगा 2^-1. So -1 को जैसे हम प्रीवियस क्लास में देखा था, -1 जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे या इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा. So 1/2 which equals to RHS. Hence the proof. Got it? Next problem is we have to prove that x⁴a into in the bracket b minus c divided by x⁴b in the bracket a minus c divided by x⁴b by x⁴c whole the power c equals to 1. Right? Similar way we have to take LHS left hand side, that is x⁴a into b minus c divided by x⁴b into a minus c
divide x by x raised to b by x raised to a whole to the power c. This is the LHS. Now we have to prove that this LHS is equals to RHS, that is RHS equals to 1 we have to find. Okay, so यहाँ पर हम सबसे पहले इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे. सो वी कैन राइट इट एज x raised to a b minus a c divided by x raised to b a minus b c, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे x raised to b by x raised to a whole to the power c लिखा हुआ है. सो हम इसको c को इनसाइड ले आएंगे, दैट इज पावर ऑफ पावर लॉ. सो x raised to bc divided by x raised to ac we can write like this. Okay, in the next step both the bases are same but the power is different, so we have to subtract the powers. x raised to ab minus ac ये न्यूमरेटर में है. अब इस नीचे वाली पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ बी ए और ए बी वट एवर वी कैन राइट माइनस बी सी डिवाइड बाय, अब इसमें भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर माइनस हो जाएगा बी सी माइनस ए सी, राइट. नेक्स्ट ओपन द ब्रैकेट, एक्स रेज टू ए बी माइनस ए बी और बी ए प्लस बी सी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू बी सी माइनस ए सी as it is. Okay, next a b get cancel, we left with, पहले हम पॉजिटिव टर्म लिखेंगे, वो वाला bc है, तो bc माइनस दिस ac डिवाइडेड बाय x रेज टू bc माइनस ac, राइट. नेक्स्ट हियर डिवीजन लॉ, बोथ द बेसिस आर सेम, सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दी और वी हैव टू डिवाइड. जो भी हमें सही लगे वो कर सकते हैं, जो भी हमें इजी लगे वो कर सकते हैं. x रेज टू bc माइनस ac माइनस ऑफ दिस हो जाएगा माइनस ऑफ बी सी माइनस ए सी, दिस इक्वल्स टू एक्स रेज टू बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ऑफ माइनस प्लस ए सी गेट कैंसल, बी सी गेट कैंसल, सो दिस इक्वल्स टू एक्स रेज टू 0 और एक्स रेज टू 0 की वैल्यू हमेशा होती है 1. सो दिस इज अवर RHS. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव दैट A inverse by A inverse plus B inverse plus A inverse by A inverse minus B inverse equals to 2B square by B square minus A square. So let's start. Take LHS. LHS is equals to A inverse divided by A inverse plus B inverse plus A inverse divided by A inverse minus B inverse. This is the LHS. Now we have to find this RHS. That is 2B square upon B square minus A square. Right? So this A inverse we can write it as in positive power as A 1 by A. जैसे कि हमने देखा था 2 इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं 1 by 2. In similar way A inverse we can write it as 1 by A whole divided by this A inverse also we can write it as 1 by A plus this B inverse 1 by B plus A inverse 1 by A whole divided by this A inverse 1 by A minus 1 by B, right. So now we can write this equals to 1 by A as it is. Now here 1 by A plus 1 by B, so we can take LCM as AB, that is here take LCM as AB. So here when we multiply 1 by A with AB, A get cancelled and left with B, right, left with B, that is here it left with B plus here 1 by B when we multiply with LCM AB, B get cancelled and left with A बच जाएगा. Similarly जब हम यहाँ पर करेंगे 1 by A को ऐसे ही लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर में जब हम AB LCM लेंगे तो यहाँ पे 1 by A को जब AB से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो A कैंसिल हो जाएगा और B बच जाएगा. Similarly 1 by B को जब LCM AB से मल्टीप्लाई किया जाएगा B गेट कैंसल एंड लेफ्ट विथ A, राइट. सो दिस इक्वल्स टू 1 by A एज इट इज 1 by A, और जब हम इस डिनोमिनेटर वैल्यू को जब ऊपर ले जाते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है. सो 1 by A ये A भी ऊपर चला जाएगा और A प्लस B प्लस A नीचे आ जाएगा, राइट. प्लस 1 by A और जब ये ऊपर लिखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, राइट. होप सो यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया. दिस इक्वल्स टू यहाँ ए गेट कैंसल, हियर आल्सो ए गेट कैंसल, लेफ्ट विथ बी बाय बी प्लस ए
plus b by b minus a. Right? Now we have to take again LCM. That is LCM हम क्या लेंगे? b plus a and b minus a. Right? तो यहाँ पे जब b plus a कैट कैंसिल हो जाएगा, b minus a होगा, तो b के साथ b minus a मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे b minus a गेट कैंसिल हो जाएगा, b इंटू b plus a मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इक्वल्स टू ओपन द ब्रैकेट b स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी डिवाइड बाय, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो फॉर्मूले की हमने क्लास ली थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाइएगा उसको फॉर्मूले की क्लास को देखिएगा, तो आपको सारे फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे और इन क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने के लिए वो यूज भी हो जाएंगे. तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो एक फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब होता है तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं. इन सिमिलर वे यहाँ पे b प्लस ए और b माइनस ए है तो हम उसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू, हियर ए बी गेट कैंसल, 2b स्क्वायर divided by b square minus a square. This equals to RHS. Okay. Next question is 9 raised to n into 3 square into 3 raised to minus n by 2 raised to minus 2 minus 27 raised to n divided by 3 raised to 3m into 2 cube equals to 1 by 27. We have to prove that m minus n equals to 1. अब हमें पूछा है m minus n equals to 1 प्रूफ करना है, इसलिए हमने RHS और LHS दोनों को ही यूज करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इम्प्लाइज 9 स्क्वेयर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर रेज टू n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू माइनस n बाई 2 रेज टू माइनस 2. लॉ, ये पावर ऑफ पावर है. 3 रेज टू माइनस n बाई 2 माइनस 2 को जब हम लिखेंगे तो 3 रेज टू माइनस n बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 गेट कैंसल एंड माइनस बिकम्स प्लस. सो दिस इज 3 रेज टू n. सो दिस विल इक्वल्स टू 3 रेज टू n माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब whole raised to n divided by 3 raised to 3m into 2 cube equals to 1 by 27 को लिख सकते हैं 3 cube. राइट. इन नेक्स्ट स्टेप पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 raised to 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3n माइनस 3 raised to 3n मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 raised to 3m इंटू 2 क्यूब. दिस इक्वल्स टू 1 by 3 क्यूब. राइट. इन नेक्स्ट स्टेप bases are same so we can add all the powers. सो 3 रेज टू 2n प्लस 2 प्लस n, हमने पावर ऐड कर दिया, बेस सेम है, माइनस 3 रेज टू 3n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 1 बाय 3 क्यूब. गॉट इट. नेक्स्ट स्टेप में हमें ये पावर्स ऐड कर देनी है. तो 3 रेज टू 2n प्लस n इज 3n प्लस दिस 2 एज इट इज माइनस 3 रेज टू 3n डिवाइड बाय 3 रेज टू 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 1 बाय 3 क्यूब. इन नेक्स्ट स्टेप हमें कॉमन लेना है. हियर स्मॉलेस्ट नंबर इज इन बिटवीन दीज टू नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 रेज टू 3n. तो हमें 3 रेज टू 3n को कॉमन लेना है. 3 रेज टू 3n कॉमन ले लिया तो हियर लेफ्ट विथ 3 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर माइनस 1. 3 रेज टू 3n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 3m. 2 क्यूब को हम लिख सकते हैं 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 1 बाय 3 क्यूब. राइट. इन नेक्स्ट स्टेप दिस इम्प्लाइज 3 रेज टू 3n, 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 3m इंटू 8 इक्वल्स टू 1 बाय 3 क्यूब. राइट. इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू 3n एज इट इज 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 3m इंटू 8 इक्वल्स टू 1 बाय 3 क्यूब. राइट. सो 8 गेट कैंसल. हमारे क्या बच गया, यहाँ पे बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और ये डिवीजन फॉर्म में है तो हम इसकी पावर सब्सट्रैक्ट कर देंगे. दैट इज 3 रेज टू 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ये 1 बाय 3 क्यूब लिखा हुआ है तो हम जब इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, मतलब इस नीचे वाले पार्ट को जब ऊपर लिखेंगे तो ये पावर नेगेटिव साइन में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3 रेज टू माइनस 3 हो जाएगा. राइट. So this implies both the powers are same. Both the powers are different but bases are same. So when bases are same, we can equate the powers. So equate the powers on both the side. Equate the power on both the side. So this becomes 3n minus 3m equals to minus 3. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, m minus n is equals to 1 हमें प्रूफ करना है. m minus n हमें प्रूफ करना है. So this equals to, जब हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3n minus m equals to minus 3. Okay.
फिर ये 3 गेट कैंसल, वी लेफ्ट विथ n माइनस एम इक्वल्स टू -1। ये हमें मिला है, बट इन क्वेश्चन में हमें पूछा है m माइनस एन इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। दिस इंप्लाइज हम यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ n माइनस एम इज इक्वल्स टू बोथ द साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई -1। सो दिस इंप्लाइज जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस एम प्लस एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 1। तो दिस इंप्लाइज m माइनस एन इक्वल्स टू 1, हेंस द प्रूफ, राइट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।